to the 32nd video on As You Like It by विलियम शेक्सपियर। नाटक एज यू लाइक इट, जिसके नाटककार विलियम शेक्सपियर हैं, पर आधारित इस 32वें वीडियो में आपका स्वागत है। In this 32nd video, we shall see Act 3, Scene 5, Part A। इस 32वें वीडियो में हम Act 3, Scene 5 का Part A देखेंगे। This scene opens to a vibrant and entertaining act. Rosalind and Celia have been invited by Corinne to secretly watch Silvius pleading for Phoebe's favor. Now, in the previous videos, we have seen random references, scattered references to the love story of Silvius and Phoebe. Now, in this scene, the same story will move forward. अभी पिछले कुछ वीडियोस में हमने कहीं कहीं छोटे छोटे संदर्भ देखे थे सिल्वियस और फीब की प्रेम कहानी के। वही संदर्भ अब इस सीन में आगे बढ़ेंगे। Rosalind and Celia have been invited by Corinne to secretly watch Silvius pleading for Phoebe's favor. Now Corinne, he goes and invites Ganymede, who he does not know that what is the actual identity of Ganymede. He goes and invites him to see how Silvius approaches Phoebe and how she reprimands him. इस सीन में कोरिन गैनीमीड, जिसके बारे में उसको ये नहीं पता है कि इसकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, ये रोजालिंड है, ऐसा उसे नहीं मालूम है, तो वो गैनीमीड को जाकर इनवाइट करता है और कहता है कि देखो ये सिल्वियस किस तरह से फीब से निवेदन कर रहा है कि वो इसके प्रेम को स्वीकार करे, और फीब किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। When he does, Phoebe reprimands him. We hear her warn in these words, "Come not thou near me." Phoebe is not pleased with his advances. When Silvius goes and approaches Phoebe, she warns him not to approach her because she is not happy with his advances. जब सिल्वियस फीब के निकट जाता है तो फीब उसे गुस्से में झिड़क देती है, दुत्कार देती है और उसे आगाह करती है कि वो उसके पास न आए। She treats Silvius with absolute scorn. Phoebe actually does not pay any respect or acknowledgement to the approaches of Silvius. She is very scornful towards him. Phoebe Silvius के निवेदन को या प्रेम के प्रस्ताव को बिल्कुल भी सम्मानपूर्वक नहीं देखती है और वो इसका तिरस्कार कर देती है, इसको झिड़क देती है। Silvius, on the other hand, is mad in love for her. He does not give up. He insists that she will understand his torment when she too is in love. Now, Silvius, he is not the type of character who would give up or who would withdraw. So, he pleads to Phoebe that today, under these circumstances, you do not understand my desire or my inclination towards you. But a day will come when you will understand what love is.
and that will happen when you yourself are in love with me. सिल्वियस घुटने टेकने वाला प्रेमी नहीं है, वो हार नहीं मानता है और अपने निवेदन को वो यथास्थिति में रखता है और फीब को समझाता है कि आज तुम्हें मेरा प्रेम समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम खुद प्रेम की स्थिति में आ जाओगी. He asserts that she cannot be convinced of his passionate love for her now, as she will understand all these gestures when the right time comes. Now, Silvius, on one hand, he is crazy after Phoebe. On the other hand, he is determined not to withdraw or not to give up. So again, he attempts to explain it cool-headedly to Phoebe that these things will come to your knowledge at the right time. Silvius बहुत उग्रता से या बहुत भावना के साथ फीब से प्रेम करता है, तो वो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो धीरे से शांतिपूर्वक फीब को समझाता है कि अभी जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही है या मेरे प्रेम की प्रगाढ़ता तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, ये सही समय आने पर अवश्य समझ में आएगी. He is indirectly referring to the future when Phoebe will feel the pang of love for him. Now here the indication is that a time will come when you will be in love with me. And when you will be in love with me, you will feel the pang of love, the pain of love, the desire of love. And it is then that you will come to understand what I meant, what I am saying now. ये इसका इशारा सिल्वियस का उस समय की ओर है जब फीब को स्वयं को सिल्वियस से प्रेम हो जाएगा, और जब उसे प्रेम होगा तो वो प्रेम के उस दर्द से, उस पीड़ा से भी गुजरेगी. तब उसको समझ में आएगा कि मैं जो कहा करता था वो क्या था. Rosalind and Celia are watching the repulsive and scornful behavior of Phoebe towards Silvius. They disapprove of it. Rosalind suddenly interrupts the pair and severely chides Phoebe for her unresponsiveness to Silvius's pleadings. Now, Rosalind and Celia, they are silently observing from a distance, and when they see that Phoebe is so repulsive, so scornful, so disrespectful of the desire, of the strong passion that Silvius is expressing, they disapprove of it. They dislike it. Then what they do? They interrupt. They go and tell Phoebe that what you are doing is incorrect. You should not misbehave with a person who is trying to tell you how passionately he loves you. रोज़लिंड और सीलिया थोड़ी दूरी से इस पूरे दृश्य को देख रही हैं, और जब वो ये देखती हैं कि फीब थोड़ा तिरस्कारपूर्ण तरीके से घृणा का भाव मन में लेकर के, या परे हट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है फीब का, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो ये इसको दूर हटा रही है अपने आप से, उससे रोज़लिंड और सीलिया दोनों पूरी तरह से असहमत हो जाती हैं और इन्हें लगता है कि हमें बीच में बोलना चाहिए. तो ये फीब के पास जाती हैं और उसको चाइड करती हैं, उसको डांटती हैं और उसको समझाती हैं कि सिल्वियस जो निवेदन कर रहा है, तुम्हें उसका ऐसा तिरस्कार नहीं करना चाहिए. फीब इज ओवर रिएक्टिंग and full of vanity.
Rosalind recommends rather unflatteringly that Phoebe take what is offered, sell when you can, you are not for all markets. Now here, Rosalind's remark is very, very important because she feels that Phoebe is overreacting and full of vanity. Now this overreaction that Phoebe is showing is based on her vanity or on her self-assessment about herself, which is much beyond reality. She feels that Phoebe is becoming vain in her approach. So she chides her, reprimands her, and she says unflatteringly, without any emotion or without any extra effort, she goes and tells Phoebe, sell what you can. You are not for all markets. Listen, Phoebe, when you are getting a value for yourself in the form of a man who is in love with you, remember to accept it or remember to pay regard to that man's emotion or sentiment towards you. Because you are not for all markets. If out of vanity you think you are a very important female who will attract the attention of many men, then remember you are not that attractive that you'll get many lovers in future. So it's better to accept the advances or the approach that this man is making to you rather than making an disproportionate self-assessment of yourself and rejecting this man. जब रोजालिंड फीब के इस तौर तरीके को देखती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है और वैनिटी दिखा रही है, घमंड दिखा रही है, और घमंड भी ऐसा जो अनुपात से बहुत अधिक है, तो रोजालिंड उसके पास जाती है और बिना लाग लपेट के, बिना किसी तरह की ऐसी भावना लिए जिससे कि फीब को ये लगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, वो उसे बहुत सरल तरीके से कहती है कि सुनो फीब, एक समय होता है जब आपकी कीमत होती है। सिल्वियस जो तुम्हें प्रेम कर रहा है, तुम इसकी कीमत नहीं समझ रही हो, लेकिन तुम अपने आप की जो कीमत लगा रही हो ऐसा सोच करके कि तुम्हें बहुत सारे प्रेमी मिलेंगे या तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो कि कोई तुम्हें प्रेम करता है, तो ये ध्यान रखना, यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स। तुम इतनी आकर्षक नहीं हो कि तुम्हें बहुत सारे प्रेमी मिलेंगे। इसलिए ये जो व्यक्ति है जो इतना प्रेम से, पैशन के साथ तुमसे व्यवहार कर रहा है, तुम्हें इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसके प्रेम को स्वीकार करना चाहिए। That is her advice to the disdainful shepherdess. By saying so, Rosalind wants to draw her attention towards her false pride and vanity, which will turn out to be a zero when nobody will love her or even approach her. Now here, Rosalind, she actually wants to bring Phoebe to the reality of life. That out of vanity, she is self-assessing herself disproportionately. And Rosalind wants Phoebe to understand that a time will come when you will be raised, you will be grounded to point zero, to nothingness. And that is the time when you will realize that you really had no value. It was only Silvius who was loving you. यहाँ पर इस डिसडेनफुल शेफर्डेस, इस ग्वालन को जो बहुत तिरस्कार कर रही है सिल्वियस का, रोजालिंड ये समझाने का प्रयास करती है कि तुम झूठे घमंड के कारण, ऐसा सोच करके कि मैं बहुत आकर्षक हूं, बहुत लोग मुझे चाहेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऐसा समय आएगा जब तुम शून्य पर आ जाओगी और सिल्वियस जो तुम्हें प्रेम कर रहा है, ऐसा तुम्हें करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। His indication is towards the future
when old age and diminished qualities will challenge her vanity. Now here, Rosalind or Ganymede indicates that at least a time comes when, which is a reality of life, that old age takes over. Then there is nobody to pay any value towards your unattractive body or physique. यहां पर गैनीमीड अर्थात रोजलिंड ये बताने की चेष्टा करता है कि और कुछ हो या ना हो, कम से कम उम्र का प्रभाव जरूर आएगा और उस समय पर कोई भी तुम्हारी क्योंकि आकर्षण खत्म हो जाएगा, एक आकर्षण विहीन व्यक्तित्व को किसी भी तरह का कोई भी सरोकार किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता है। इसलिए इस वैनिटी को, इस झूठे घमंड को छोड़ देना उचित होगा। लेट अस सी सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आइए अब कुछ शब्द देखते हैं, वाक्यांश देखते हैं जो इस वीडियो को समझने में सहायक हैं। वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एक्साइटिंग, जीवंत और उत्साहपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग, रोचक और मनोरंजक। प्लीड टू आस्क somebody for something in a very strong and serious way. गंभीरता पूर्वक याचना करना अथवा चिरौरी करना। Reprimand, to tell somebody officially that he or she has done something wrong. गलत काम करने पर किसी की भर्त्सना करना, फटकार लगाना, वो भी औपचारिक रूप से। Warn, to tell somebody about something unpleasant or dangerous that exists or might happen so that he or she can avoid it. किसी व्यक्ति को आसन्न, विद्यमान प्रतिकूलता या खतरे की पूर्व सूचना देना अथवा संभावित हानि के प्रति सचेत करना ताकि वह अपना बचाव कर सके। टू एडवाइज somebody not to do something, किसी को किसी बात से सावधान करना अथवा आगाह करना। Here Rosalind, who is in the disguise of Ganymede, warns Phoebe not to overrate herself. That is, she should come out of her vanity. यहां पर warn का प्रयोग गैनीमीड अर्थात रोजलिंड द्वारा फीब को आगाह करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब वो उसे समझाती है, रोजलिंड उसे फीब को समझाती है कि तुम अपनी वैनिटी, अपने इस झूठे घमंड को छोड़ दो, वरना भविष्य में इस घमंड के कारण तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। प्लीज्ड, हैप्पी और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग, किसी बात के लिए प्रसन्न या संतुष्ट। एडवांसेस, टू मेक प्रोग्रेस और हेल्प समथिंग मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना या प्रगति में सहायक होना। स्कॉर्न, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव when you do not respect somebody or something. घृणा, अवज्ञा, अनादर भाव अथवा तिरस्कार। To refuse to accept help or advice, especially because you are too proud.
घमंड में आकर दूसरे की सहायता या सलाह को न मानना, तिरस्कार करना। इंसिस्ट, टू से फर्मली दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन somebody डज नॉट बिलीव यू। किसी बात को सच मानने पर अड़ जाना, अडिग रहना, भले ही दूसरा न माने। टॉर्मेंट, great pain and suffering in your mind or body, somebody or something that causes this। तीव्र मानसिक या शारीरिक वेदना, ऐसी वेदना पहुंचाने वाला व्यक्ति या वस्तु। Assert, to say something clearly and firmly, स्पष्ट रूप से और बलपूर्वक कुछ कहना। To behave in a determined and confident way to make people listen to you or to get what you want। दूसरों को का ध्यान व आदर पाने के लिए आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार करना। Here, the quality of assertion has been associated with all those positive characters like Rosalind, Celia, Duke Sr., who are full of confidence of their right doing and they assert themselves wherever necessary। Orlando also। ये जो assert करने की का गुण है, ये उन सभी पात्रों के साथ जोड़ा गया है जो सही है और अपने उचित होने का उनको होश है और वो आवश्यकता पड़ने पर अपने उचित व्यवहार को पूरे जोर के साथ दबाव देकर के पूरा करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। जैसे रोजालिंड है, सीलिया है, ड्यूक सीनियर है, ऑरलैंडो है, ये वो पात्र हैं जो बिल्कुल अपनी बात में खरे हैं और अपने व्यक्तित्व को उसी एजर्शन के साथ पोर्ट्रे करते हैं। कन्विंस, टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव समथिंग, किसी को विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना। टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना, मना लेना या राजी करना। पैशनेट, showing or caused by very strong feelings, भावावेशपूर्ण, बहुत प्रेमवश। gesture, a movement of the hand, head, etc. that expresses something, कुछ कहने के लिए हाथ, सिर आदि को हिलाने की क्रिया। अंग संकेत, to point at something, to make a sign to somebody, किसी वस्तु की ओर संकेत करना, किसी व्यक्ति को संकेत से कुछ कहना। Now here this is a play, a drama which is being enacted on the stage. For that reason, the characters on the stage, they speak by verbal language, they use verbal language and at the same time they use the body language or gestures. ये नाटक है और यहाँ पर जितने भी पात्र हैं वो मंच पर अपने शब्दों के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनकी कुछ अभिव्यक्तियां सूक्ष्म रूप से उनकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से या उनके सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती है, जो जेस्चर है। इनडायरेक्ट, नॉट बीइंग द डायरेक्ट कॉज ऑफ समथिंग, नॉट हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन with something, जो किसी का प्रत्यक्ष कारण न हो। परोक्ष, जिसका किसी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क
न हो। अप्रत्यक्ष, पैंग, अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल पेन, अचानक उत्पन्न शारीरिक या मानसिक गहरी पीड़ा। टीस, कसक या हुक। रिपल्सिव, that causes a strong feeling of disgust, घोर नफरत पैदा करने वाला, घृणास्पद। Disapprove, to think that somebody or something is bad, foolish, etc. किसी बात को अनुचित समझना अथवा नापसंद करना। Interrupt, to say or do something that makes somebody stop what he or she is saying or doing, कुछ करते या कहते हुए व्यक्ति को कुछ कहकर या कोई हरकत कर रोकना। टोका टाकी करना, हस्तक्षेप करना। To stop the progress of something for a short time, किसी वस्तु की प्रगति को क्षण भर के लिए रोकना। रुकावट होना या पैदा करना। Unresponsiveness, not reacting as a quality of people. It is marked by a failure to respond quickly or with emotion to people or events. अप्रतिसाद, प्रतिक्रिया विहीन बन जाना। Here in this drama we see that Phoebe is unresponsive. She does not respond to whatever stimulus Sylvius is creating before her. यहां पर प्रतिक्रिया विहीनता फीब के पात्र में देखी गई है, जो सिल्वियस के किसी भी भाव के प्रति किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देती है। ब्लीडिंग, the action of making an emotional or earnest appeal to someone, अपने पक्ष को प्रस्तुत करना, अपनी बात के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करना। Vanity, the quality of being too proud of your appearance or abilities. घमंड, दंभ, अपनी अकल या शक्ल का। Vanity is false pride, which is a negative quality and specially attributed to the female characters. Vanity झूठे घमंड को कहते हैं, जो कि एक नकारात्मक गुण है और विशेष तौर पर यह महिला पात्रों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। Flatter, to say nice things to somebody, often in a way that is not sincere, because you want to please him or her, or because you want to get an advantage for yourself. खुशामद या चापलूसी करना, लाभ के इरादे से किसी की दिखावटी प्रशंसा करना। To choose to believe something good about yourself, although other people may not think the same. अपने विषय में बहुत अच्छा सोचना, भले ही दूसरे लोग ऐसा न सोचें। Approach, to come near or nearer to somebody or something. पास आना या पहुंचना। The act of coming nearer to somebody or something
किसी के अधिक निकट आने की क्रिया। डिमिनिश, टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट। डिक्रीज, छोटा होना या छोटा करना। महत्व घटाना, कम होना या करना। चैलेंज, समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। चुनौती, किसी की सच्चाई, अधिकार, संपन्नता आदि पर प्रश्न चिन्ह लगाना। Here Ganymede or Rosalind tells Phoebe that in future you will be brought down to point zero and life will become a great challenge when in future old age will take over you and you will be bereft of all those qualities for which you are vain. यहाँ पर चैलेंज या चुनौती का संदर्भ गैनीमीड अर्थात रोजलिंड के उस वक्तव्य में है जहां वो फीब को समझाती है कि उम्र अधिक होने पर, बूढ़ी हो जाने पर तुम्हारी कोई कीमत नहीं बचेगी और जितने भी गुण हैं जिनके कारण आज तुम्हें इतना घमंड हो रहा है वो सारे के सारे गुण तुम्हारे उम्र के कारण या समय के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। तब कोई भी तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देगा और ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना ही जीवन या अपनी ही इस सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना व्यवहार सिल्वियस के प्रति नर्म रखना चाहिए। कीपिंग इन माइंड दिस चैलेंज, यू शुड बी अ बिट मोर ह्यूमेन towards Silvius. Here we have seen Act 3, Scene 5, Part A. Kindly see the next video for the next part of the story which continues. अभी हमने इस वीडियो में Act 3, Scene 5 का Part A देखा है। नाटक इसके आगे अभी जारी है। नाटक की इसके आगे की कहानी देखने और समझने के लिए आप इसके बाद वाला वीडियो देखें क्योंकि घटनाक्रम अभी और आगे है। द स्टोरी कंटिन्यूज, काइंडली सी द नेक्स्ट वीडियो। कहानी अभी जारी है, कृपया अगला वीडियो भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद।